میں یہ شادی نہیں کروں گی، میرے جسم پر، میری روح پر صرف اور صرف حماد کا حق ہے۔ میں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، میں مر جانا گوارا کروں گی پر کسی دوسرے لڑکے سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے کوئی جنونی یا پاگل لڑکی لگ رہی تھی، دلہن کے لباس میں لال آنچل میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا، اس کی حماد سے بارات آ چکی تھی، یہاں تک کہ باہر بیٹھا اس کا دولہا اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی کی رمق نہیں تھی، بلکہ آنکھوں میں کرب کا سمندر لیے وہ بیڈ پہ بیٹھے رو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی اور ہاتھوں میں پکڑی نیند کی گولیوں کی شیشی لڑک رہی تھی۔ وہ اپنی محبت میں اس قدر جنونی اور اندھی ہو چکی تھی کہ حرام اور حلال کی پہچان بھی مٹ گئی تھی۔ وہ کوئی بچی تو نہ تھی جو اسے معلوم نہ ہو کہ اسلام میں خودکشی جیسے فعل کی سخت ممانعت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے جذبات کی شدت میں اس حد تک بہک گئی تھی کہ یہ حرام کام بھی اسے حلال محسوس ہونے لگا تھا۔ محبت کی روح میں بہکتی وہ اپنے والدین جیسے عظیم رشتوں کو بھول بیٹھی تھی، جنہوں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور اس کے بھائی کو بھی فراموش کر دیا تھا جو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ صرف 4 دن کی محبت، اس کے لیے جس کی گہرائیاں سچائی کو پرکھنے کا اس نے کبھی وقت نہیں لیا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے یہ وعدہ کرائی تھی کہ وہ اپنی جان لے لے گی۔ یہ وعدہ اس نے جذبات کے روح میں بہہ کر کیا تھا، مگر اب وہ اس جنون کو حقیقت کا روپ دینے پر بضد تھی، چاہے اس کی قیمت اس کی زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ حماد تو وہ بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر اس سے محبت کرتی ہے، اور اس فعل سے وہ یہ ثابت کر دینا چاہتی تھی وہ اس کے لیے موت کو بھی خوشی سے گلے لگا لے گی۔ وہ انہیں سوچو کہ بھور میں پھنسی ہوئی تھی، تب بھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ آئندہ بیٹا دروازہ کھولو اور نیچے آ جاؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ ماں کی آواز میں خوشی تھی، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ سانسیں رکنے لگی، آنکھوں میں آنسو کی دھنچ آ گئی۔ لمحے بھر کی جھجک کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل کھولی اور ایک ہی جھٹکے میں نیند کی ساری گولیاں نکل گئی۔ باہر دروازہ بجتا رہا، آوازیں آتی رہیں، لیکن اس کا وجود بے جان ہونے لگا۔ یکایک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر دھڑام سے گر گئی، اور پھر کمرے میں سناٹا چھا گیا، موت جیسا سناٹا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب کوئی جواب نہ آیا تو پریشانی بڑھ گئی۔ جب کمرے کا دروازہ توڑ کر سب اندر داخل ہوئے اور منظر ایسا تھا کہ سب کی روح کانپ گئی، وہ فرش پہ نیند بے ہوش پڑی تھی، ہاتھ میں نیند کی گولیوں کی خالی شیشیوں اور آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ عائدہ نے اپنی شادی والے دن خودکشی کرنے کی کوشش کی، پورا خاندان مل کر رہ گیا، سلطان صاحب اور ارمیل خانی اسے ہسپتال لے کر بھاگے، جہاں جبکہ فاطمہ بیگم وہیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ خاندان میں جو بھی سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا اور یہی کہتا، توبہ، ایسی بیٹی خدا کسی کو نہ دے جس نے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ کسی کو پسند کرتی تھی یا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو منع کر دیتی، خودکشی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ اللہ! ہاں، ایسی لڑکیوں کو مختلف لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی، بات گشت سنتی فاطمہ بیگم تو تختے میں آ گئی۔ آخر وہ کن کن لوگوں کو جواب دیتی جب اپنی بیٹی میں ہی کھوٹ تھا؟ یوں بارات واپس چلی گئی اور عزت خاک میں مل گئی۔ جیسے ہی مہمانوں سے گھر خالی ہوا، فاطمہ بیگم ہسپتال آ گئے۔ جیسے بھی تھی ان کی بیٹی تھی۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے، لیکن عائدہ کے بارے میں ڈاکٹر نے کچھ نہ بتایا۔ فاطمہ بیگم غموں سے پریشانی سے چکر لگاتی رہیں، شہر کی طرف دیکھتی رہیں، کبھی اپنی بیٹی کی طرف جو خود بھی پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور نرس باہر نکلی تھی۔ نرس، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سلطان صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیے، پیشنٹ کی جان خطرے میں ہے، انہوں نے کافی مقدار میں گولیاں نکلنی ہے، پیداوار کر دی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ پلیز فارم فل کر کے ریسیپشن پہ پیسے جمع کروا دیں تاکہ ہم آگے کا پروسیجر اسٹارٹ کریں۔ نرس کہتی چلی گئی تو سلطان صاحب لڑکھڑائے تھے۔ علمی نے فوراً آگے بڑھ کے اپنے باپ کو سنبھالا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں تم جا کر اسپتال کا بل بھراؤ، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ وہ سرحد ہلاتا وہاں سے چلا گیا، جس پہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ پیچھے دیوار سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئے۔ وہ بہت محبت کرتے تھے، وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی انکار کرنے پر وہ خود کی جان لینے کی کوشش کرے گی۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی کی تو بات تھی جب عائدہ کا رشتہ پکا ہوا تو وہ کتنے خوش تھے۔ عائدہ کی شادی ان کے سب سے دور کے بیٹے ایس پی فہد انصاری سے ہو رہی تھی، جو کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ جبکہ عائدہ کو یہ بات پتہ چلی تو ان کے کمرے میں آئی تھی۔ سلطان صاحب LED پہ نیوز دیکھ رہے تھے۔ پاپا! عائدہ کی آواز پر انہوں نے چونک کر LED بند کی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ وہ مسکرائے اور عائدہ ان کے بعد ساتھ بڑھ گئے۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ انگلیاں مروڑتے بولی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی یونیورسٹی کے فرینڈ حماد حیدر کو پسند کرتی ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولی تو سلطان صاحب نے غصے سے عائدہ کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے عائدہ؟ تم جانتی ہو ہم خان ہیں اور خان غیر لوگوں میں رشتہ نہیں کرتے، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ اور تم وہاں یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہو یا سب حرکتیں کرنے؟ وہ اسے سنجوڑتے ہوئے بولے۔ بابا، میں محبت کرتی ہوں اس سے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ بابا پلیز سمجھنے کی کوشش کر، رشتہ
طے کرते वक़्त आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि हम मैं ये शादी करना चाहती भी हूँ या कि नहीं। वो रोते हुए बोली, "अब कुछ नहीं हो सकता आइज़ा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा मैं वही करूँगा। पूरा ख़ानदान जानता था कि मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और तुम्हारे पेपर्स के फ़ौरन बाद ही शादी है। तो ऐसा बेहतर यही होगा कि खामोशी से शादी कर लो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे सख्ती करूँ।" वो गुस्से से ढारते हुए बोले तो वो सहम कर अपने रूम में चली गई। वहीं दरवाज़े में बैठ के फूट-फूट कर रो दी। तो नाश्ते की टेबल पे बैठे खाना खाने में मसरूफ़ थे, जबकि आयदा अपनी सोचों में गुम अ, प प्लेट में चम्मच हिला रही थी। आयदा खाना खाओ और खाने के बाद फहद अपनी माँ के साथ आएगा तो तुम अजमेर और अपनी माँ के साथ जाके शादी की ड्रेसेस ले आओ, फिर तुम्हारे पेपर्स स्टार्ट हो जाएँगे और फिर टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए निकाह और वलीमे के कपड़े जाकर ले आओ और बाकी सब कुछ हम खुद कर लेंगे। सुल्तान साहब बोले तो आयदा ने सहम कर बाप की तरफ देखा, जो तंबी निगाहों से अपनी बेटी को देख रहे थे। बाबा में से पहले कि वो बोलते, सुल्तान साहब ने हाथ के इशारे से इसे मज़ीद बोलने से रोका। आयदा, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं शायद मान जाता, लेकिन अब रिश्ता हो चुका है और मैं अपने दोस्त को ज़ुबान दे चुका हूँ, तो इस लड़के को भूल जाओ। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वो इसके सर पर हाथ रखते उड़ गए और आँखों में नमी लिए खामोशी से सर झुका गई। वो मरे-मरे कदमों से कमरे में आ गई और सर झटकते किताबों में गुम गई। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई तो आयशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अलमीर खड़ा था। "आयशा, तैयार हो गई हो? तो नीचे आ जाओ, फहद और उसकी माँ तुम्हारा इंतज़ार करें।" वो कहकर पलटने लगा। जब आयशा की आवाज़ पर वो पलटा, "लैला, आप प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरे लिए आप बाबा से बात करेंगे, मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ लैला, सिर्फ़ एक बार प्लीज़।" वो अपने भाई की मिन्नतें कर रही थी। देखो आयज़ा, बात को समझने की कोशिश करो, बाबा नहीं मानेंगे और मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं। फ़हद बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुका हूँ और वो तुम्हें आगे पढ़ने की इजाज़त भी दे देगा। अगर एक बार उससे मिल लो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें वो अच्छा लगेगा। अब मज़ीद कोई बहस नहीं, चलो जल्दी करो इन्हें और इंतज़ार मत करवाओ। वो ठंडी साँस हवा में ख़ारिज करती चादर उठाते अलमीर के साथ सर झुकाए नीचे आ गई। माशाअल्लाह! आयज़ा को देखते ही ज़किया बेगम ने खुशी से आवाज़ में कहा और शफ़क़त से इसके अपने करीब बैठाकर प्यार किया। फिर पैसे उबार कर इसका सदका आयज़ा ने उतारा। आयज़ा ने खामोशी से सर झुकाए बैठी रही, मगर फ़हद की नज़रें इसके नाज़ुक सरापे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी निगाहों की तपिश महसूस करते आयज़ा ने सर उठाया तो फ़हद ने मुस्कुराकर उसे देखा, मगर वो चेहरे पर किसी भी तासुर के बगैर दोबारा नज़रें छुपा गई। चाय पीने के बाद वो सब शॉपिंग मॉल आ गए, जहाँ आयज़ा ने ड्रेसेस के इंतख़ाब का काम अपनी माँ पर छोड़ दिया और खुद गुमसुमती एक तरफ बैठ गई, जिस पर फ़ातिमा बेगम और ज़किया बेगम को मजबूरन खुद ही कपड़े पसंद करने पड़े। शॉपिंग के बाद वो लोग रेस्टोरेंट गए, वहाँ भी फ़हद ने उसकी गैर मामूली खामोशी को शिद्दत से महसूस किया। वो उससे पूछना चाहता था कि अगर आखिर वो इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करे? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? मगर मौका ना मिलने के बाद ये सवाल इसके दिल में ही रह गया। और आखिरकार सब अपने-अपने घरों को लौट गए। हमाद मैं ये शादी नहीं करना चाहती। घरवालों को मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे। मेरे घरवाले मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हारी हूँ माँ, तो मैं किसी और की कैसे हो जाऊँ? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वो वहीं फूट-फूट कर रो दी और हम्माद भी जज़्बात के रोग में बहता इसे सीने से लगा गया। वो हम्माद के कहने पे यूनिवर्सिटी उससे मिलने आई थी। "आयदा, रोना बंद करो, इस मसले का हल निकालो।" वो आयदा को खुद से दूर करते बोला, "अम्मा, तुम अपने घरवालों से बात करो प्लीज़। मेरे घरवाले अब घर में अपने माँ-बाबा को भेजो ताकि वो बाबा से बात करें। मुझे यकीन है जब तुम अपने माँ-बाप को लेकर आओगे तो वो मान जाएँगे।" वो आज से बोली थी, "जानती हूँ मैं खुद अभी पढ़ रहा हूँ, ना मेरे पास कोई जॉब है और ना ही कोई तजुर्बा और मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। घरवालों से बात भी कर चुका हूँ, उन्होंने साफ मना कर दिया और उनका कहना है अगर तुम 2 साल इंतज़ार कर सकती हो तो ठीक है। इन्हें कोई ऐतराज़ नहीं जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती, मैं कुछ नहीं कर सकता। आयज़ा, मुझे समझने की कोशिश करो। प्लीज़ तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपने मंगेतर से बात करो, क्या पता वो हमारी मदद कर दें। हमाद ने अपनी मजबूरी बताकर एक हल पेश किया। आयज़ा की आँखें चमकी, वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। इसके बाद वो वही करेगी जो वो सोच चुकी है। अगले दिन वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुँची तो सामने एसीपी फ़हद अंसारी अपने कमरे में बैठा एक फ़ाइल चेक कर रहा था। वो झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई तो एसपी फ़हद अंसारी ने सर उठाया और आँखों में हैरानी लिए उठ खड़ा हुआ। आपको अगर मुझसे मिलना था तो मुझे कॉल कर देती, हम कहीं बाहर मिले थे, यहाँ मिलना मुनासिब नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए बोला, वो मुझे आपसे बात करनी थी और हाँ, बात भी बहुत ज़रूरी थी। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घरवालों को पता चले कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। वो झिझकते हुए बोली, पता नहीं क्यों बात करते वक़्त इसे पसीना आने लगा। वो डर रही थी कि जो बात वो करने वाली है इस पे फ़ाज़ अंसारी का रिएक्शन कैसा होगा? ठीक है, बोलें क्या बात करनी है? आपको मुझसे? वो मुस्कुराते हुए बोला। वो इसमें नज़रें नहीं हटा पा रहा था।
या इसकी नज़रों की तपिश बर्दाश्त करती सड़क गई थी। इसकी हथेलियाँ पसीने से भीग रही थी। वो सेहत की हालत से महफूज़ हो रहा था। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस शादी से इनकार कर दें। मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपनी यूनी के दोस्त हम्माद हैदर को चाहती हूँ। आयदा की बात उसके चेहरे के ज़ाविये बिगड़े थे और माथे पर गुस्से की लकीरें उभरी थी। वो हाथों की मुट्ठियाँ भींच गई। आप कुछ होश में हैं कि आप क्या बात कर रही हैं? 4 दिन बाद हमारा निकाह और अब आप मुझे बता रही हैं कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, आप किसी और को चाहती हैं। मुझे लगता है आपको संजीदगी से सोचना चाहिए इस बारे में। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ आयज़ा, लेकिन अमानत में ख़यानत हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये बात आपको तब बतानी चाहिए थी जब हमारा रिश्ता पक्का होता। मैं पीछे नहीं हट सकता। आप चाहे शादी से खुश हों या ना हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये शादी तो होकर रहेगी। वो कड़क लहज़े में बोला तो उसके अंदाज़ से गुस्से में मैं खड़ी हो गई। तो थोड़ी देर बाद पहले जो झिझक और डर था वो कहीं और अब वो कहीं भी नहीं था। देखिए एसवी फहाद अंसारी, मोहब्बत में मैं ख़यानत के क़ाइल मैं भी नहीं हूँ। मैंने हम्माद हैदर से मोहब्बत की है। मेरा दिल इसी के लिए धड़कता है, इसलिए आपसे बात करने आई थी क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ, मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से। और इससे अगर आपने किसी से मोहब्बत की होती तो आपको एहसास होता कि मोहब्बत होती क्या है। अगर आपने शादी से इनकार ना किया, शादी वाले दिन खुदकुशी कर लूँगी और ये बात आपको जल्द पता ही चल जाएगी कि मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मैं गुस्से से चीखती तो एसवी फहाद अंसारी ने लब भेजे। आप ज़िद्दी हैं तो मैं भी अपनी ज़िद का पक्का हूँ। ये शादी तो होकर रहेगी। इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा क्योंकि सिर्फ़ आपने मोहब्बत नहीं की, मैंने भी मोहब्बत की है आपसे। आइज़ा 5 साल पहले मैंने आपको देखा था। इस वक़्त आप सिर्फ़ 16 साल की थी, छोटी थी बहुत। मैंने सोचा आप बड़ी हो जाएँगी तो आपको अपना बनाऊँगा। 5 साल का तरह अरसा बहुत ज़्यादा होता है। आइज़ा तो मेरे सामने अपनी मोहब्बत कदम भरने के बजाय शादी की तैयारी करें। वो नम लहज़े में बोलता चलता हुआ उसके करीब आया, उसका हाथ पकड़ता अपने लबों से लगा लिया। हाथ के लगते लमस पर वो जी-जान से काँपी थी। वो लब भेंचती, अपना हाथ छुड़वाकर अपना बैग उठाती वापस आ गई, जबकि फुआद अंसारी को पूरा यकीन था जिस तरह वो यहाँ से गई है, वो अब शादी के लिए इनकार नहीं करेगी। वो सरशार आँखें बंद कर गया, "अगर तुम किसी और से निकाह करोगी, उस दिन खुद को ख़त्म कर दूँगा। आइदा कसम है तुम्हारी, मत शादी करो।" हम्माद की आँखों में परेशानी और नमी थी। वो आवाज़ में वही मोहब्बत का लहज़ा जिसने आयज़ा सुल्तान को इसके बना रखा था। वो यूनिवर्सिटी के कैंटीन के गोशे में बैठी थी। "तुम्हें क्या लगता है हम्माद, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी आयज़ा जी पाएगी? मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ साथ मरेंगे। ये मेरा वादा है हम्माद, तुम्हारी आयज़ा का वादा, तुम भी वादा करो।" इसने लरज़ती हुई आवाज़ में कहा और अपनी हथेली इसकी तरफ बढ़ा दी। "वादा।" वो बोला और एक अजीम सी कसम से इसकी बढ़ती हुई हथेली थाम ली। आयज़ा ने हर कोशिश कर ली थी, लेकिन सुल्तान साहब ज़िद पड़े थे। मजबूरन आयज़ा को ये एक रास्ता इख्तियार करना पड़ा। इसलिए फ़हद अंसारी हमारा बारात लेकर आया तो बहुत खुश था, लेकिन इसकी खुशी को नज़र उस वक़्त लगी जब उसे पता चला कि आयज़ा ने इससे शादी से बचने की कोशिश की। वो खामोश हो गया था। बारात वापस ले गया। वो पछता रहा था कि काश वो इस ज़िद ज़िद और अना में ना आया होता, उसकी बात मान लेता और इस शादी से इनकार कर देता तो आयज़ा को इंतहाई कदम ना उठाना पड़ता। वो सिर्फ़ 2 साल के अंदर हैदर से मोहब्बत में इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि अब पलटना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। दिल की हर धड़कन, हर सोच और हर ख्वाब में सिर्फ़ वही शख्स बस गया था। इसने अपनी खुशी, सुकून और हद तक के अपने असूलों को भी इस मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया था। अब वो ऐसी राह पे थी जहाँ इसे वापसी का मतलब अपने वजूद को तोड़ देना था। चाहकर भी वो खुद को इस एहसास से आज़ाद नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये मोहब्बत इसकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जैसे साँस लेना जिसके बगैर जीना मुहाल हो। 24 घंटे गुज़र चुके थे लेकिन सूरत-ए-हाल अब भी गैर यकीनी थी। डॉक्टर्स की खामोशी और मुतअद्दिद रवैया घरवालों की परेशानी को मज़ीद बढ़ा रहा था। आयशा बेहोश थी और बार-बार यही कहा जा रहा था कि अगर इसने 24 घंटों के अंदर होश ना सँभाला तो वो कोमा में जा सकती है और एक बार कोमा में जाने के बाद वो कब बाहर आएगी या कभी आएगी या नहीं, इस बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं था। हर लम्हा इंतज़ार की अज़ियत को बढ़ा रहा था। वक़्त जैसे थम गया था। सबकी नज़रें दरवाज़े की तरफ लगी थी कि कब कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। आखिरकार तवील इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आए, उसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी और उसने इत्मीनान से कहा, "क्या वो खतरे से बाहर है?" ये सुनते ही सबने सुकून का साँस लिया और आँखों में जमा आँसू खुशी में ढल गए। 1 हफ्ते बाद वो अस्पताल से घर लौटी। कहीं उसकी हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। आँखों के नीचे गिर्द सियाह हल्के पड़ चुके थे, चेहरे की रंगत में सर्दी घुल गई थी। वो महज़ 7 दिनों में इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हड्डियों का ढाँचा लगने लगी थी। घर का माहौल भी इसके लिए बोझिल हो चुका था। सुल्तान साहब मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए थे। इनकी आँखों में शिकवा और चेहरे पे सख्ती नुमाई थी। वो इससे बात तक नहीं कर रहे थे, जैसे अपने दिल की सारी मोहब्बत पर पर्दा डाल दिया हो। उसका भाई तो इसे देखते ही गुस्से से सड़क जाता। सुल्तान साहब और आलमी खान की नाराज़गी कम होने के बजाय हर दिन बढ़ती जा रही थी।
रबिया का ज़िद जवाब दे गया था। वो वहीं अपने बाप और भाई के सामने फूट-फूट कर रो दी अनमीर, तो उसके रोने पे मज़ीद सिकवा हो गया और उसे कंधों से जकड़ते हुए दहाड़ा था कि आयज़ा को अपने काँधों पे के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। क्या मेरा तुम्हें ये सब करके बदनामी अलग हुई तुम्हें एहसास है आयज़ा तुम्हारी बारात वापस चली गई तुम्हें हमारा ज़रा-सा भी ख़्याल नहीं है बताओ जो जवाब दो उस शक की मोहब्बत तुम इतनी पागल हो गई थी तुमने मौत को गले लगाना बेहतर समझा मैं मुझे समझ नहीं आया था 4 दिन के प्यार के लिए तुमने हमारी मोहब्बत को सुला दिया और वो गुस्से से चीखता वहाँ से चला गया। इसके अल्फाज़ की मायने की तरह उसके दिल में बेहोश हो रहे थे मगर वो खामोशी से आते बहाती रही क्योंकि वो जानती थी कि इसका कोई वज़ाहत भी इनके दिलों से शिकवा कम नहीं कर सकती। अम्मा से जुदाई, माँ-बाप और जान से भी अधिक भाई की नाराज़गी ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। वो खामोश थे घंटों अपने कमरे में पड़ी रहती, खाना आ गया तो खा लिया वरना वो अपनी ही दुनिया में गुमसुम बैठी रहती। 4 महीने गुज़र चुके थे, वो अपने कमरे तक महदूद हो कर रह गए थे, लेकिन उसकी नाराज़गी वैसी की वैसी थी। एक फ़ातिमा बेगम भी थी जो उसका ख़्याल रख लेती थी। वो अपने वो रिज़ल्ट आया उसका वो अच्छे नंबर तो ना ला सकी लेकिन पास ज़रूर हो गई थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पे लेटी हुई थी जब अलमीर अंदर आया। "लैला आप यहाँ क्यों हो? क्या वो सब ठीक तो है ना?" वो उठ बैठी। आयज़ा के चेहरे पे परेशानी का साफ नुमाया क्योंकि आजकल सुल्तान साहब की तबीयत ख़राब रह रही थी। अनमीर खान इसके सामने बेड पे बैठा तो आयज़ा की आँखों में नमी उतर आई। आज कितने महीनों बाद वो उसके साथ बैठा था। "लाला क्या बात है?" वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। "आयज़ा जिसके लिए तुमने मरने की कोशिश की थी वो तो आज भी बिल्कुल ठीक है। गोलियाँ तो उसने खाई ही नहीं। तुम तो कहती थी कि हमाद ने खुदकुशी कर ली। इतना अंधा एतमाद करती थी तुम उस पर कि तुमने आँखें बंद करके इसे यकीन कर लिया। लेकिन वो तो ज़िंदा है। एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठा हँस-हँस के बातें कर रहा था। तुम तो कहती थी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। इसके अल्फाज़ सुनकर आयज़ा पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। जब क्या आमिर खान की आवाज़ में गुस्सा सब कुछ था। क्या मतलब लाला मैं समझी नहीं। आयज़ा की ज़बान सूख गई थी। साँस लेने में दुश्वारी होने लगी थी और दिल तो मानो जैसे धड़कना ही भूल गया था। वो गहरे-गहरे साँस लेती बोली मतलब ये कि तुम धोखा खा गई हो आयज़ा। वो लड़का तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुमने हमारी इज़्ज़त पे दाँव पे लगा दी। इस जैसे घटिया शख्स की वज़ह से सलमीर की आवाज़ पर आयज़ा को लगा जैसे दुनिया इसके कदमों तले से निकल गई है और हम्माद ने कुछ भी ना किया। इसने खुदकुशी नहीं की, वो ज़िंदा था, ठीक था, खुश-व-ख़ुर्रम लेकिन फिर वो सर झटक कर परेशानी से बोली, "लाला मैंने खुद उसे नींद की गोलियाँ दी थी। उसने कहा था वो मेरी शादी वाले दिन खुदकुशी कर लेगा, तभी तो मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी।" वो वहीं बेयकीनी से फूट-फूट कर रो दी। आयशा अभी भी बेयकीन थी, जबकि इसके रोने पर अलमीर सर खामोशी से कमरे से निकल गया। अगले दिन आयशा हमाद के घर गई, लेकिन वहाँ पहुँचकर जो सच इसके सामने आया, उसने इसके वजूद से हरकत छीन ली। वो लम्हों तक वहीं साकित खड़ी रही जैसे किसी ने ज़मीन से जकड़ लिया हो। पता चला कि हमाद ने 1 हफ्ता पहले अपनी कज़न से निकाह कर लिया था और हैरत की बात ये थी कि हमाद के चेहरे पे शर्मिंदगी, पछतावे का शोभा तक नहीं था। वो ऐसे पेश आ रहा था जैसे कुछ हुआ ना हो, जैसे आयशा की मोहब्बत और कुर्बानियाँ इसके लिए कोई मायने ना रखती हों। इस लम्हे आयशा ने आँखें बंद कर ली। दिल कर्ब से भर गया और अंदर ही अंदर वो मुकम्मल टूट गई। हमाद की बेवफ़ाई ना सिर्फ़ उसके दिल को चकनाचूर कर गया बल्कि मर्द ज़ात पे इसका भरोसा भी छीन लिया। अब इसके दिल में मोहब्बत की जगह एक ऐसी तल्ख़ नफ़रत ने ले ली थी जो किसी भी मर्द को देखकर उसे महसूस होने लगती थी। वो मुर्दा दिल लिए अपने कमरे में कैद हो गया। आज़ा मैं तुमसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं थी कि खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेता। मुझे लगा तुमने खुदकुशी कर ली इसलिए मैंने अपनी कज़न से निकाह कर लिया। रुख़सती 2 साल बाद हुई। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, भूल जाओ मुझे। आयज़ा कमरे में हमाद की आवाज़ें गूंजने लगी। वो अपने कानों पे हाथ रखती अज़ियत से चीख उठी। आयज़ा की चीखों के सुन के सुल्तान साहब, अमीर खान और फ़ातिमा बेगम भागे-भागे आए। सामने आयज़ा फ़र्श पे पड़ी रो रही थी। आयज़ा की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बेहोश वो बेगाना हो गई थी। जब उसकी आँख खुली तो वो अस्पताल में थी। न जाने कितनी देर तक वो सच को घूरती रही। 2 दिन अस्पताल रहकर वो वापस घर आई वो अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। आयज़ा की बिगड़ी हुई तबीयत इसकी खामोशी को देखते हुए सुल्तान साहब ने फैसला किया लिया कि उसका रिश्ता अपनी बहन के बेटे मोहित खान से तय कर देंगे। इनकी बहन की रुक़िया बेगम ने पहले भी मोहित के लिए रिश्ता माँगा था, लेकिन अब इनकी बहन ने दोबारा रिश्ता माँगा तो इनकार ना कर सके। घर में शादी की तैयारियाँ तेज़ी से शुरू हो गई, मगर आयशा का दिल इस फैसले को मानने को तैयार ना था। इसने अपने वालिद को रोते हुए समझाने की कोशिश की कि वो अभी भी शादी नहीं करना चाहती, इसे कुछ वक़्त चाहिए ताकि वो खुद को सँभाल सके और मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। लेकिन इस बार सुल्तान साहब का रवैया सख्त और अटल था। इन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर उसने मज़ीद कोई ज़िद या उल्टी-सीधी हरकत की तो वो खुद ज़हर खा लेंगे। ये सुनकर आयशा के लब सुन्न हो गए, वो चुप हो गई। आज वो एक बार फिर दुल्हन बनी थी, लाल रंग के भारी जोड़ में फुल ब्राइडल मेकअप के साथ वो एक अप्सरा की तरह हसीन लग रही थी, मगर चेहरे पे
साया का छुपाया वो घूंघट इसके अंदरूनी टूट-फूट को छुपा रहा था। अपने कमरे में खामोशी से बैठी वो सोचों में गुम थी। इसी खुत्ते में सुल्तान साहब मौलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुए। निकाह की रस्म शुरू हुई। मौलवी साहब बुलंद आवाज़ में कहा, "आइज़ा बिन्त सुल्तान खान, आपका निकाह मोहित खान बिन यूसुफ खान के साथ 50 लाख रुपए हक़ महर के एवज़ किया जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है?" वो गुमसुम सी बैठी रही, अल्फाज़ जैसे हलक में अटक गए। फिर हिम्मत जमा करके आहिस्ता मगर आवाज़ अल्फाज़ में 3 बार कबूल कह दिया। इस तरह जब मोहित खान से पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए पुरएतमाद लहज़े में कबूल है कहा और साथ ही कमरे में मुबारक सलामत की आवाज़ें गूंज उठी। रुखसती के बाद चंद रस्मी रसूमात अदा किया गया था और फिर को उसके नए कमरे में पहुँचा दिया गया। कमरा निहायत नफ़ासत और दिलकशी से आराता था। बेड के चारों तरफ एक सफ़ेद नेट के पर्दे लगाए गए थे। बेड पर सरक और सुनहरी रंग की इम्तियाज़ात से तैयार की गई थी। बेडशीट बिछाई गई थी जिसके वसत में ताज़ा गुलाब के फर पोटियों से निहायत मोहब्बत से दिलकश बनाई गई थी। कमरे के हर गोशे में खुशबूदार मोमबत्तियाँ चल रही थी जिनकी मध्यम रोशनी और महक ने फ़िज़ा को ख्वाबनाक और पुरकशिश बना दिया था। कमरे के ऐन वसत में एक छोटा-सा झुमका टंगा हुआ था। इतनी मोहब्बत और प्यार से की गई सजावट भी अदा के दिल पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। वो खामोशी से बेताब चेहरा लिए बैठी रही। वो एक ऐसे जज़्बात से आली लड़की थी जिसके जज़्बात कब पहुँच चुके थे। वो खाली और मुर्दा लिए मुहीर खान की फेस सजाए बैठी थी। मुहीर खान कमरे में दाखिल हुए तो उसके चेहरे पे एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। कमरा को रोशनी और फूलों से अच्छी तरह सजाया गया था। आज उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मुकम्मल हो चुकी थी। आयदा का साथ वो साथ था जिसने इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया था। खूबसूरती से लहंगा सजाकर बेड पे बैठी हुई आयदा इसकी इस दुनिया जहान की खूबसूरती समेटे हुए अपने मुंतज़िर महसूस हुई। मुस्कुराते हुए वो अंदर दाखिल हुआ और आयदा के सामने जाकर बैठ गया। लेकिन इसे यूँ महसूस हुआ जैसे आयदा यहाँ होकर भी यहाँ नहीं, वो गुमसुम सी बैठी बिस्तर पे बैठी थी। इसकी आँखों में वो चमक नज़र नहीं आई थी जो एक नई नवली दुल्हन के चेहरे पे पहली रात के महके लम्हात को सोच कर आती है। मोहित ने मुस्कुराते हुए आयशा का हाथ थाम लिया। मोहित के छूने पर वो कोई रद्द-अमल ज़ाहिर नहीं कर रही थी। बस वो बेजान गुड़िया की तरह बैठी थी। कोई रवैया ना पाकर मोहित ने मुस्कुराते हुए उसके मज़ीद करीब उसका हाथ लबों से लगा लिया। आयशा की आँखों से आँसू जारी हो गए। वो कर्ब और देर से आँखें बंद कर गई। आयशा मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। मैं ये वादा करता हूँ आयशा तुम्हारे हर दर्द, हर तकलीफ में मरहम रखूँगा। कभी कोई दुःख नहीं दूँगा तुम्हें ये मेरा वादा है। तुमसे ये तुम्हारे शौहर का वादा है। वो खूबसूरत से गोल सी रिंग बनाते हुए मुस्कुराकर उसके चेहरे से घूंघट हटाता गया। वो कितने पल वो उसके चेहरे से नज़र हटा ना सका। मोहित मुसलसल टिकटकी बाने आयशा को देखता रहा। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चेंज करने जा रही हूँ। इससे पहले कि वो मज़ीद इसके करीब होता आयशा बहाना करते मैं उठ खड़ी हूँ। मोहित खान का दिल चाह रहा था कि वो उसके पास बैठे रहे, उसके सीन-शराबे को देखता रहे, लेकिन उसकी थकन का ख्याल करते हुए वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब वो चेंज कर कर वापस आए तो मोहित भी चेंज करने चला गया। फ्रेश होकर जैसे ही वो बाहर आया, वो ये देखकर हैरान रह गया कि आयशा ने खुद को कंप्यूटर से अच्छी तरह ढाँप रखा था। उसकी अजीब-ओ-गरीब हरकतें देखकर मोहित खान को हैरत के साथ-साथ गुस्सा भी आ रहा था। ये इन दोनों की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी और इस रात की खूबसूरती में भंग डालते हुए इसे खराब कर रही थी। वो जल्दी से आयशा की तरफ बढ़ा और खींचकर कमर उतार दिया। "आयशा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नींद आ रही है मोहित, मैं थक चुकी हूँ, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ।" इससे पहले कि दोबारा लेटती मोहित ने आगे बढ़कर इसे कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया। "जी, नहीं मोहतरमा, आज आप मेरी इजाज़त के बगैर नहीं सोएँगी।" और इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ता, आयशा ने दोनों हाथ मोहित के सीने पर रखते हुए इसे ज़ोरदार तरीके से पीछे धकेल दिया। वो अचानक अफ़ताब के तेरे ध्यान नहीं था इसलिए बकलाकर पीछे गिर गया, जबकि अब इसकी आँखों में वाज़ा किस्सा नज़र आने लगा था। ये क्या पागलपन है आयशा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा हक है तुम्हें छूने का, तुम्हें महसूस करने का, तुम इस तरह क्यों कर रिएक्ट कर रही हो? कम से कम आज की इस खूबसूरत रात को तो बर्बाद मत करो, मुझे अपने करीब आने की इजाज़त दो। आयशा मोहित संजीदा लहजे में आयशा को कहा। इसके कहते हुए इसके करीब आने होने लगा जबकि आयशा गदान में इसे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा मैं सोना चाहती हूँ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती और मुझे हाथ मत लगाना मोहित, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी भी महसूस हो रहा था जैसे आयशा इससे मज़ाक कर रही है। अगर ये मज़ाक था तो काफ़ी बेहुदा मज़ाक था। इससे पहले कि वो आयशा की तरफ बढ़ता इससे सवाल करता, आयशा ने इस पे पड़ा चाकू जल्दी उठाया। मैं मज़ाक नहीं कर रही मोहित, अगर तुम मेरे करीब आई या तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो उसके अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। आयशा का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। उसकी साँसें तेज़ से ली थी और आयशा को देखकर डर गया।
आँखों को अपनी गलाय पर रख के चीख रही थी, "इसे दूर रखो आइदा, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे करीब, प्लीज़ इसे दूर रखो।" खु वो खुद ही नरम लहजे में बोलता तेजी से आयता की तरह बनने लगा, उसके हाथ से चाकू लेकर दूर फेंक दिए। "ठीक है, तुम सो जाओ लेकिन प्लीज़ इस तरह का पागलपन मत करो।" जो इसके लिए ये हरकत देख के काफ़ी खौफ़ज़दा हो गया था। आइज़ा जैसे पढ़ी-लिखी लड़की से दोबारा ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो एक-दूसरे को जानते नहीं थे, वो एक-दूसरे को अच्छे से जानते थे। वो उसकी गुज़री ज़िंदगी के बारे में सब जानता था कि किस तरह से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इस बात को 8 महीने हो चुके थे, वो काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गई थी। फिर वो दोबारा इस तरह क्यों कर रिएक्ट कर रही थी? आइज़ा ने अपने हाथ मोहित खान की तरफ से निकाल लिए और सोने के लिए लेट गई। मोहित कुछ देर तक इसे देखता रहा और जब उसे महसूस हुआ कि वो सो चुकी है, वो उस पर कमर दुस्त करता खामोशी से सिगरेट का डब्बा उठाकर टेरेस पर आ गया। क्या-क्या ख्वाब नहीं देखे थे इसने इस रात के हवाले से आइज़ा का साथ इससे मिला भी तो कैसे ना जाने वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी। सिगरेट का धुआँ फ़िज़ा में उड़ते हुए मुसलसल इसी बात को सोच रहा था। इस वक़्त इसकी अ, रंग बिल्कुल सुर्ख हो गया रहा था और सर्दी के बावजूद इससे सर्दी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। आखिर आइज़ा इससे ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो शादी नहीं करना चाहती थी या अभी भी हम्मा से मोहब्बत करती है जो आइज़ा के करीब भी नहीं आना चाहती? नहीं, अज़ियतनाक सोचों के सर्द गिर्द गहरा कर लिया। वो अब इस सब को सोचना नहीं चाहता था लेकिन इस सब के बावजूद उसके ज़हन की स्क्रीन पे यही सोच चेह मंडला रही थी। हो सकता है कि किसी गुस्से या स्ट्रेस हो और सब तक नॉर्मल हो जाए। मुझे अभी से आयशा के बारे में कोई राय नहीं काम करनी चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद वो वापस कमरे में आ गया। आयशा मुकम्मल तौर पर नींद की वादियों में उतर चुकी थी। लाइट बंद करते मोहित खान भी बेड पर लेट गया था। थोड़ी देर के बाद वो भी नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह उसकी आँख खुली तो आयशा पहले ही कमरे से बाहर चली गई थी। उसे ये देखकर गुस्सा आया क्या उसे मोहित के लिए रुकना चाहिए था। उसका इंतज़ार करना चाहिए था। आखिर उसकी माँ इसके बारे में क्या सोचेगी? इससे अब हकीकत में आइज़ा पर गुस्सा आ रहा था। तैयार होने के बाद वो वापस जाने का इरादा रखता था। वैसे तो उसने सोच लिया था कि वो हनीमून प्लान करेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, वो उसे बताएगा कि उसे कितना चाहता है, लेकिन अब वो आइज़ा को तकलीफ देना चाहता था। इसलिए आज इसका ऑफ़िस जाने का इरादा था। आइज़ा की सुबह आँख खुली तो मोहित खान गहरी नींद में सो रहा था। एक पल के लिए इसने मोहित की मासूम चेहरे को देखा जो सुकून से सो रहा था। इसकी आँखों के गोशे नम होने लगे। वो हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वो मोहित के साथ ये सब कुछ करे, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहा था, इससे वो हम्माद की याद दिला रहा था। इसने भी तो ऐसे ही वादे किए थे कि वो उसके बगैर मर जाएगा, जी नहीं सकेगा। इससे झूठे वादे याद करते कब वो उसे तकलीफ़ पहुँचा गई, वो समझ ना सकी। अभी भी वो मोहित खान के जागने से पहले कमरे से बाहर चली गई। वो एक बार फिर मोहित खान के नाराज़ नज़रों और सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। इसकी फूफी साहब किचन में नाश्ता बना रही थी, जैसे उसे देखते ही वो खिल उठी थी। वो भी उदास और मुस्कुराती उनकी किचन में बर्तन धोने में मदद करने लगी, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से, मोहब्बत से आयशा के हाथ से बर्तन एक साइड रखते ही कमरे में भेज भेज दिया कि अभी वो नई नवेली दुल्हन है और अभी इसके काम करने के दिन नहीं है, आराम करने के दिन है। वो कमरे में आई तो मोहित फ्रेश सा वॉशरूम से निकला था और आयशा को तैयार देखकर वो बेड पे बैठी आयशा की तरफ मुस्कुराते हुए आया और उसके साथ बेड पर बैठ गया। आयशा खामोशी से बैठी रही। खूबसूरत ज़िंदगी की पहली शुरुआत बहुत-बहुत मुबारक हो मेरी जान। वो उसके करीब होता हुआ जज़्बातियों में बहने लगा था। वो उसके सर पर मोहब्बत से बूसा देता उसके होठों पर झुकने लगा तो आयशा एक बार फिर से उससे दूर धकेल गई। तुम्हें मेरी एक बार कहीं भी बात समझ नहीं आती, मेरे करीब मत आओ। लेकिन बार-बार तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम पे गुस्सा करूँ, तुम्हें ज़लील करूँ। मैं आखिरी बार कह रही हूँ मोहित खान मुझसे दूर रहो वरना खुद को ख़त्म कर लूँगी। तुम सब मर्द एक जैसे हो, ऐसे वादे करते हो जैसे तुम लोग निभा नहीं कर सकते। तुम मर्द इस काबिल नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जा सके। वो गुस्से से चीख रही थी और सत्ते में खड़ा ऐसे सुन रहा था। वो गुस्से को कंट्रोल करता इसके करीब होने लगा तो वो एक बार फिर चीखी। गुस्से से इसका वजूद काँपने लगा था। वो दूर रहो, मुझसे दूर रहो, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता उसके काँपता वजूद को सीने से लगा गया और वो वहीं धाड़े मार-मार कर रोती रिलैक्स हुआ। आइज़ा को कोई हाथ नहीं लगा रहा, तुम्हें कोई भी तुम्हारे खरीद की नहीं लाया गया। वो उसे प्यार से समझा रहा था। आयशा की आँखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश से बेगाना हो गई, बाथरूम में गिर गई। वो आयशा वो उसे जल्दी से बेड पे उठाकर किचन में आया था, जहाँ उसकी माँ रुकैया बेगम काम कर रही थी। मैं सारी सूरत-ए-हाल बताता हुआ उनके साथ कमरे में आया था। तुम जाओ डॉक्टर को बुलाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मोहित हाँ, जल्दी करो बेटा। वो बाहर चला गया। जब फिर रुकैया बेगम के पास बैठ गई, जबकि उसे होश आया था। आधी रात का वक़्त था। सामने मोहित खान लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था। पानी बोला वो भी खुशक ज़ुबान फेरती बोली तो वही काम छोड़ता इससे करीब आ और जब से पानी भर कर दिया तो वो एक ही झटके में गिलास खाली कर गई थी और लेट गई। मोहित किचन में गया, खाना गर्म करके लाया उसके खाने सामने खाने की वेट रखी। आधा खाना खा लो फिर दवाई भी लेनी होगा। मुश्किल से खाना खाने लगी। जब वो खाना खाकर फारिग हुई तो
وہ دودھ کا گلاس اور دوائی لے کے کھڑا تھا، عائشہ نے خاموشی سے دودھ کے ساتھ دوائی نکل لی، وہ لیٹ گئی تھی تو میڈ اس پر کمبل دوست کا دوا پر کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے، جس میں وہ زیادہ تر کمرے میں بیٹھی کھلاؤ میں دیکھتی رہتی یا گارڈن میں کرسی پہ بیٹھی تو میں گم نظر آتی، اس کی پھوپھی اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتی اور انہیں نماز اور قرآن کی باقاعدگی سے پڑھنے کی ہدایت کرتی ہے، وہ خاموشی سے انہیں سنتی، ان کے نورانی چہرے پر تکتی رہتی، تاہم وہ نماز وہ قرآن کی باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ محیط خان کے قریب آنے پر جس طرح عائشہ کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ اب محتاط رہنے لگا تھا، وہ سوچ چکا تھا کہ جب تک وہ مکمل دستیاب صحت یاب نہیں ہو جاتی وہ اس کے قریب نہیں جائے گا، وہ اس سے پیار سے اپنی طرف آگے کرے گا، وہ اس سے باہر گھمانے لے جاتا، کبھی وہ لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے، کبھی اس کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے جاتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ خود کو نارمل رکھتی لیکن محیط کے قریب ہونے پر ہائپر ہو جاتی، وہ آفس سے گھر آئے تو کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، وہ جانواز سے بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، وہ تھوڑی دیر سے تکتا رہا اور پھر فریش ہو کے باہر نکل آیا، وہ اب بھی جانواز سے بیٹھی تھی۔ عائزہ اس کے اس آواز پہ سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ کھایا تم نے؟ وحید نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں بھوک نہیں ہے مجھے، وہ اب جائے نماز سے لپٹی بولی تمہیں وہ دوا لینی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا بھوکے پیٹ مت لینا، وہ اس کے ہاتھ سے جب نماز لیتا ایک سائڈ رکھ گیا ہے، ہاں بیٹا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، وہ اسے بیٹھ پر بٹھاتا کچن میں کھانا گرم کرتا کمرے میں لے آیا، وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جب یہ کھانا کھاؤ یہاں آ کر کنگھی رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا اسے کھلانے لگا، وہ خاموشی سے منہ کھولتی اور کھا لیتی، وہ پھر دوائی دکھلاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا، وہ نہانے چلے گی، وہ نہا کر آئی تو موہن نے نظریں چرائیں، وہ بلیک نائٹی میں موجود تھی، موہن کا دل بے اختیار دھڑکا لے سلک نائٹی کی جسم کی خدوخال کو واضح کر رہی تھی، اس کی غربت کے لیے وہ مچلنے لگا، وہ بیڈ پر بیٹھی ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، وہ بھی سب کو سمیٹ کر اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا، محبت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا اپنے ہونٹ رنگ کے اٹھ کر جانے لگی تو موہن نے بہت پیار سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، تمہیں پتا ہے میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، وہ جذبات کے روح میں بہکتا اس کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ گیا تھا، وہ پوری جی جان سے کانپ گئی تھی، وہ ایک بار پھر غصے سے دور دھکیل رہی تھی، بتاؤ مجھے آخری مسئلہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے، جب میں تمہیں قریب آتا ہوں تو تم کیوں مجھے دھکیل دیتی ہو؟ میں غصے سے چیخا، مجھ سے بات کرو، میں تمہارا شوہر اور تمہارے ہر دو تکلیف کو سمیٹ لوں گا، میں اپنی محبت سے تمہارے زخموں پہ مرہم رکھوں گا، کب تک یہ سیکھتے رہنا چلے گا، میں تمہاری قریب آنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، سکون چاہتا ہوں تم سے، لیکن تم ہر دن مجھے خود سے دور دھکیل دیتی ہو، مجھے اذیت دے رہی ہو اور خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو، عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا عائزہ، تم نے ایک بزدل شخص سے محبت کی جو تمہیں تو موت کی طرف دھکیل گیا، خود کو تمہیں بھول کر اپنے لیے خوشیوں سے بھری زندگی کا راستہ چنا، تمہارے لیے صرف تکلیف پہ چھوڑ گیا، بس بس کر دو خود کو تکلیف پہنچانا، میں نہیں دیکھ لیتا اس طرح روتے ہوئے جس طرح تم راتوں کو اٹھ کر سجدے میں گر کر روتی ہو، میرا دل دکھتا ہے، تمہاری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، ایک دن بھی تم نے مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی، کیا تم آج بھی حماد کو چاہتی ہو، اس شخص کو جس نے تم سے محبت کبھی کی ہی نہیں، اگر کی بھی تو اسے نبھا نہ سکا، موہد کی بات سن کر عائزہ پھٹ پھٹ کر روتی، میں نفرت کرتی ہوں اس شخص سے، لعنت بھیجتی ہوں اس پر، اس کے میں نے کیا نہیں کیا، اپنے ماں باپ یہاں تک کہ خود کو بھی رسوا کر دیا اور وہ خود نکاح کر کے خوش و خرم زندگی گزارا ہے، کتنی بیوقوف تھی میں جو اس شخص کی باتوں میں آ کر خود کو ختم کرنے چلی گئی، خود کو ہی بھول گئی، محیط یہ تکلیف مجھے اندر ہی اندر کھا رہی، ختم کر رہی، میں نے اپنے ماں باپ اور جان سے عزیز بھائی کا دل دکھایا، اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، میں تمہاری بھی گنہگار ہوں محیط، میں تمہارے لائق نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ کر روتے ہوئے بولی، محیط نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی، عائزہ چھوڑنے کی بات مت کرنا اور یہ بھی کبھی مت کہنا کہ عائزہ تم میرے لائق نہیں ہو، میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف تمہیں چاہا، تم سے میں نے آج سے نہیں تب سے محبت کی جب تم صرف 14 سال کی تھی، مجھے صرف ایک موقع دے دو، تمہیں میری محبت پہ یقین آ جائے گا، وہ اس سے بہاؤں میں بڑھتا ہے تو جھکا تھا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر گیا، وہ رونا بھول کر اس سے آنکھوں محسوس کرنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ اس کے سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا اس کے ہر زخم پر اپنی محبت کی مرہم رکھ رہا تھا، وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی، آج پورے ایک سال 2 مہینے بعد وہ گہری نیند سوئی تھی، ورنہ وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر خود کو کوستی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، 2 دن ہو گئے تھے وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، وہ جب بھی اس سے دیکھتا وہ سرکنار ہو جاتی، وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلی جاتی، 1 ہفتے بعد اس کی علمی لاڈلا کا نکاح تھا جس کی وہ کتنی دیر سے اپنے پیو کو منا رہی تھی لیکن وہ منع کر رہی تھی، بیٹا
मोहित के साथ बाजार चली जाना, थोड़ी देर बाद वो ऑफिस से वहीं ऐसे भी आ जाएगा, तुम्हें जो कपड़े लेने हैं ले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रुकने बेगम उसे प्यार से समझाती बोली, फूफा मुझे शर्म आती है, वो मुझे बहुत अजीब से नजर से देखते हैं। रुकया बेगम मुस्कुराई, बेटा वो तुम्हारा शौहर है, इससे कैसी शर्म नहीं है, अभी भी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, और जो वो कहे इसकी बात माना करो। कल भी वो तुम्हें कमरे में बुलाने आया था, लेकिन तुम तो मेरे साथ आकर सो गई, अब जाओ सोने दो तुझे। वो दवाई खाती सो गई और वो मुंह बनाती मुस्कुरा दी। कितने दिनों बाद वो दिल तो खुश हुई थी, जिंदगी जैसे इन 2 दिनों में ही खूबसूरत लगने लगी थी। वो कमरे में आया तो वो ख्वाले में कंघी कर रही थी, मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। वो जो अपने ही धुन में खड़ी थी, एकदम पलटने से उसकी चोट सीने से जा लगी। इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती, वो उसे बाहों में उठाता बेड पर ले आता। मोहित, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे हैं, लेकिन वो अनसुनी करता, इसे बेड पर सुलाता, इसके करीब होता। हाँ, वो मुझे ही बताओ, इतने दिनों से मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? एक ही रात में तुम थक गई हो और मुझसे। कल रात भी तुम मम्मी के कमरे में जाकर सो गई थी। पता मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था अम्मी के सामने तुम्हें उठा के ले आऊं, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर गया। आज के बाद अगर तुम वहां सोई या मुझसे दूर होने की कोशिश की